it has to have proper waste management. This is biomedical waste that is coming out, and you need to have proper anesthesia backup post-op. A untrained person will not know what to do. They will not know when a complication occurs. Most of the complications and deaths occur because the person who was doing the procedure is not trained to pick up complications, is not trained to manage the complications. They don't even know. So there is a window. So if you know there is something, if you give an anesthesia, there can be, I think even you people will also, there can be a severe allergy. Now a trained doctor will pick it up and manage it. Some of the deaths, the high profile newspaper deaths were because the person there was not aware about that this is an allergy. They reassured the patient this is normal, it will settle, the edema, the swelling will settle, and the person died at home. So this is the importance. These are procedures that are safe in the safe hands. These are not something that can be taken lightly. It is a surgery. Anything that goes in the body, you're putting anesthesia, there can be some reactions which only a trained person is trained to detect and manage. So it is very important that people do not go by एक के साथ एक free discount. They offer now, we give you this much Karwa Chauth discount, this discount. So do not fall for those kind of traps. Please see the qualification of the person for whom you are going to get anything, treatment or any procedure. And this message, if you can help us disseminate, it will be very, very good to ensure patients the public health and that they are not misled and they do not land up in complications or even losing their lives. I think इतने सीनियर डॉक्टर्स ने आपको सब बता ही दिया है। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूंगा, आप सब लोग बार्बर पे तो जाते हैं, नाई पे जाते हैं बातें करने के, क्या मोची के पास जाते हैं बातें करने? मोची के पास भी चाकू है, मोची के पास भी कैंची है, ऐसे नहीं होता। ऐसे ही जो सर्जरीज हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक सर्जरीज हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स हैं। आप उनसे कराएं जो इस चीज पे ट्रेन है, जो एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सालों साल उस पर ट्रेन है, ना कि ऐसी जगह पे जहां पे उन चीजों की उसकी ट्रेनिंग नहीं। उनसे वो कराएं जिसके लिए वो ट्रेन है। आपने किसी स्किन स्पेशलिस्ट को या प्लास्टिक सर्जन को देखा है सुनते हुए कि मैं डेंटल स्केलिंग कर दूंगा या दांत निकाल दूंगा आपका? कभी नहीं सुना, क्योंकि हम अपनी दायरे में, हमारे एजुकेशन के दायरे में रहते हैं कि हमें क्या आता है और हमें क्या नहीं आता। जैसे आप सब जर्नलिस्ट हैं, तो आप जर्नलिज्म के दायरे में रहते हैं। कल को आप बोले मैं वकालत करूंगा, ऐसे नहीं होता ना। तो आप अपने दायरे में रहें, और हमारा आपसे मकसद ये है कि जनरल पब्लिक को ये अवेयर कराया जाए कि इस चीज का दायरा किसके अंदर है। क्योंकि आप अगर मोची से बाल कटवा लेंगे तो बाल ही खराब कटेंगे ना, यहाँ पे किसी इंसान की जान चली जाएगी। तो किसी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराने आता है वो एक नॉर्मल इंसान होता है, व्यक्ति होता है, औरत होती है, आदमी होता है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। और अगर किसी प्रोसीजर से उसकी जान चली जाए तो बिल्कुल नॉर्मल हंसता खेलता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन डॉक्टर की देखी नहीं गई, सिर्फ बोर्ड पे देख लिया गया कि हेयर ट्रांसप्लांट, या देख लिया गया कॉस्ट सस्ता देख लिया गया वगैरह वगैरह। क्वालिफिकेशन देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये सर्जरी कराना, क्योंकि सही इंसान से सर्जरी कराएंगे तो सेफ रहेगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं, तो एक जो बोला जाता है डू नो हार्म, मेडिसिन का ये बेसिक प्रिंसिपल है, डू नो हार्म। एंड एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम के लिए somebody losing their life, I think there can be nothing sadder or worse than that. And somebody, a normal person, just because of this media praise for improving, they fall for this, they say improve your looks, and they advertise all these IV drips and all. So it is the lack of awareness and this media hype that is driving our, lay public for falling for these traps. So that we should help disseminate this information that this should be prevented. आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कॉस्मेटिक एक्सपर्ट और हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट बने हुए हैं। कानपुर की घटना है जिसमें गलत तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट किया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। जी। तो जब आप जानते हैं कि ऐसे डॉक्टर हैं, मतलब ऐसे जो फेक डॉक्टर हैं जोड़ा छाप टाइप के और जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, उनके खिलाफ आप एसोसिएशन की तरफ से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाए? देखिए, उसके लिए एफआईआर दर्ज करवाने की बात जो आपने कही है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले हम पब्लिक को अवेयर कराएं
ऐसा हो ही ना कि वो वहां पर जा सके। और दूसरी बात, एक बहुत थिन लाइन है, कुछ लोग एजुकेशन देने के एवज में अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो आपने कहा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वो सिर्फ एजुकेट करने के एवज में करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ ब्यूटी पार्लर है, हम तो सिर्फ एक क्रीम बता रहे हैं, उसके एवज में वो अभी एक मैंने वो भी दिखाया था, सोशल मीडिया पेज भी दिखाया था, उसमें वो बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे एक का दिखाया गया कि वो ईयरलोब सर्जरी करते हैं, उनका काम नहीं है, लिंक करते हैं। तो इसमें एफआईआर की जहां तक आपने बात कही है, उससे ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो आपके माध्यम से हम कर सकते हैं, वो है कि लोगों में जागरूकता जगाई जाए कि आप इस तरह के झांसों में ना आए। जैसे भी डॉक्टर रजत ने कहा कि आप ऊंची से बात नहीं कर पाते हैं, वैसे ही ये समझना चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं इस रील को देख करके, क्या वो सही डॉक्टर है या वो वास्तव में डॉक्टर है भी कि नहीं है, और अगर है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि हमारे देश की संसद में, पार्लियामेंट ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हुई है, जो कि आपके माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं जागरूकता। इसमें हमारी मदद करें। पेशेंट जब जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, तो जी। उनका वो डिग्री नहीं देखते, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते। अगर आप वही जरूरी है उनका क्वालिफिकेशन देखना। आपका जो क्वेश्चन था कि आप लोग एफआईआर क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं, मैं एक बताना चाहूंगी कि आईआईटीएल के अंडर हमने एक स्पेसिफिक क्वाकरी सेल बनाई है, जो हम लोग ऐसे जो भी देखते हैं ऐसे नॉन डॉक्टर्स ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं, उनका हमने कंप्लेंट्स एट अ रेगुलर बेसिस वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को, वहाँ का जो भी इंचार्ज होता है, मेडिकल ऑफिसर रहता है, तो almost more than I think 2,000 and 3,000 complaints we have filed. Our quackery cell has sent complaints to the district health officers and whoever, because हर एक district में अलग होता है जो भी इंचार्ज होता है, तो generally it is a district health officer. So हमारी quackery cell जो है regularly ये complaints फाइल कर रही है। So FIR डायरेक्टली हम नहीं फाइल कर सकते, पर डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हम बताते हैं कि ये क्वाक है और ये जो प्रोसीजर कर रहा है वो गलत है, ही इज नॉट क्वालिफाइड टू डू द सेम। सो ये ईयरली हम लोग कंटिन्यूअसली करते हैं, ईयरली नहीं कंटिन्यूअसली। पिछले कई सालों से हम ये कर रहे हैं और बहुत सारे क्लिनिक्स को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स ने बंद भी करवाया है। झोला छाप के साथ क्या होता है, उसने आज इस गली में क्लिनिक बंद कर दिया, अगली गली में खोल देगा, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम जैसे लोगों के पास खोने के लिए बहुत बड़ी चीज है हमारी डिग्री, जिसको हम लोगों ने अर्न किया है, हमने किसी से खरीदा नहीं है। आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर? मेरा सवाल आपसे था, आजकल लोग गवर्नमेंट ऑफिस देखते हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह जो भी सर्च करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, और ऑनलाइन इतनी फर्जी लिस्टिंग आ रखी है, क्योंकि देखो और तो लोग कहीं जाएंगे नहीं, सीधा ऑनलाइन गूगल डालेंगे बैच डर्मेटोलॉजिस्ट, और वहाँ इतनी फर्जी लिस्टिंग है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने, थैंक यू, आपने सवाल पूछा। देखिए, रेगुलेशंस जो गूगल है, एडवर्टाइजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हम मीडिया, और गूगल भी एक मीडिया है, सोशल मीडिया भी एक मीडिया है, प्रिंट भी मीडिया है, कि जब आप किसी के इश्तिहार छापते हैं, आप किसी का एडवर्टाइजमेंट छापते हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी देखते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ आपकी संस्थान की क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है कि आप सही इंसान को नहीं दिखा रहे हैं, उनको बस अपने पैसे के लिए बेच रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, यही तो काम है, उन्होंने पूछा एफआईआर नहीं करते, हम किसी एक को नहीं रोकना चाहते हैं, हम तो सबको रोकना चाहते हैं। उसे कैसे रोक सकते हैं? आप लोगों की मदद से। अगर आप लोग सोसाइटी को एजुकेट कराने में हमारी मदद करें कि जी ऐसे लोगों के पास जाना ही नहीं है, आपको जाना है डिग्री देखना है। डिग्री देखना मुश्किल है, दो लोगों देख लीजिए, आईआईटीएल का लोगो, हमारे एसोसिएशन का लोगो, ये लोगो देख लीजिए। ये लोगो भी वही यूज कर सकते हैं जो लोगों ने डिग्री पास की हुई है और हमारे एसोसिएशन में मेंबर बने। ये तो आसान है ना, तो आप ये देख लीजिए और फिर उसके बाद अपनी सर्जरी उनसे करा सकते हैं। और तीसरा माध्यम, आईआईटीएल की वेबसाइट, हमारी एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाके उन डॉक्टर की डिग्री भी चेक करी जा सकती है कि वो हमारे एसोसिएशन मेंबर है या नहीं है। आईआईटीएल ने, हमारी एसोसिएशन ने, जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट पूरे देश में हैं, जितने भी प्लास्टिक सर्जन पूरे देश में हैं, उन सबके नाम, फोन नंबर, फोटो के साथ उस पर डाले हुए हैं, तो उससे भी आपको मदद मिल सकती है कि जहां आदमी सही इंसान के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक आई वुड लाइक टू टेल यू कि आरएमपी जो है उसके रूल में ये है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो जो बल्कि है, जो प्रोसीजर बहुत दिखा रहा है या बहुत ज्यादा अपने आप को सेल कर रहा है ना,
that should also एक तरह का वो warning bell है कुछ hair problem. मैंने आपको क्या beginning बोला ये जो एक के साथ एक free and all this. अब ये मैंने आपको बहुत beginning में बोला कि क्या ratio आप देखिए 18,000 dermatologists actual जिनके पास MD डिग्री है इंडिया में पूरे इंडिया में और Instagram पे 1.5 lakhs. तो आप रेशियो देख लीजिए ना कि बाकी that should be the warning bell कि कितने लोग अपने आप को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैडम अभी आपने वाई और गेट वन वाली जो बात बताई है फ्री ऑफर वाली, क्या आपकी संस्था किसी तरह डॉक्टर्स के जो सीनियर्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं क्या ऐसा ऑफर वो भी निकालने की प्लानिंग में है या नहीं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. आप बिल्कुल सही हैं. होता क्या है कि जब एक गलत प्रथा चल रही होती है तो जो यंगस्टर्स होते हैं उनको भी एक इंकरेजमेंट मिलती है कि हम करेंगे हमारा भी बिजनेस मतलब हमारे को भी अच्छा हमारा प्रैक्टिस चलेगा. हमारे एसोसिएशन से बार-बार डायरेक्टिव्स निकलते हैं. वी शेयर विद ऑल आवर मेंबर्स कि दिस इज नॉट अलाउड दिस काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिस. उसमें हमारी पूरी लिस्ट आप ट्रेन नहीं करेंगे. आप जो क्वालिफाइड बंदा नहीं है उसको आप कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे. जहां ऐसी ट्रेनिंग हो रही है आप जाएंगे नहीं और आप ऐसे जो आप बोल रहे हैं ऐसे मैल प्रैक्टिसेस आप नहीं करेंगे और आपका एक्शन लिया जाएगा. तो ये हम रेगुलरली हम अपने मेंबर्स को ये शेयर करते हैं. उनको ये डायरेक्टिव्स हमारे एथिक्स एंड कैसे आपको प्रैक्टिस करना है ये हमारे शेयर होते हैं ऑनलाइन में और ईमेल में. जी हाँ, और हर एक कॉन्फ्रेंस में जिसमें भी हमारी चाहे स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो उसमें हम इस एथिक्स को हम बार बार दोहराते हैं. और इस साल की मैं बात करूं तो इस साल जितने भी इस तरह के डॉक्टर्स पाए जाएंगे उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रखी है मैंने अपने माध्यम से, क्योंकि मैं प्रधान हूं इस एसोसिएशन का भी. तो मैंने वार्निंग स्ट्रिक्ट दे रखी है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है हम उसका स्ट्रिक्ट पालन करेंगे. और हम ये नहीं देखेंगे कि आपको नहीं पता था, ऐसा नहीं होता. आपको सब कुछ पता है लेकिन आप दूसरे कर रहे हैं उसके झांसे में ना आए. और जो आपने कहा कि क्यों हम नहीं कर सकते, देखिए हम क्वैक नहीं बन सकते, हम झोला छाप नहीं बन सकते. हम लोगों ने एक रिस्पेक्टेड हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में हमने कुछ एक डिग्री हासिल की है. उस डिग्री के साथ साथ हमारी एक दायित्व बनता है कि हम मरीजों का गलत नहीं करें. नो हार्म फर्स्ट इज डू नो हार्म एंड पेशेंट सेफ्टी सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम इससे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते. जो सही में डॉक्टर है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. जो डॉक्टर नहीं है वो जो मर्जी कर सकता है. तो आपका इतना बड़ा देश में आपका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? हाउ वन कैन बिलीव यू एंड हाउ वन कैन फील द सेफ्टी? देखिए जो इसका मॉनिटरिंग सिस्टम है वो है हम लोगों ने हमारे जितने भी माध्यम है हम उन माध्यमों के साथ हम सोसाइटी को बार बार जागरूक करते रहते हैं. हमारी अलग अलग तरीके से, जैसे हम साइकिल रैलीज निकालते हैं, हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को जागरूक करें कि आप सही दिशा से भटके नहीं. जैसे अभी डॉक्टर रजत ने भी बताया कि हमारी जो दोनों की सोसाइटीज हैं उन सोसाइटीज के ऊपर कोई भी जा सकता है, उनके वेबसाइट के ऊपर कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि डॉक्टर विनय सिंह क्या रजिस्टर्ड डॉक्टर मेडिकल डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं है, और मैं कितने साल से हूँ, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, या हम जितने भी यहाँ बैठे हैं डायस पे इस देश में जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स हैं वो सही में है कि नहीं है. आप अपने इस शहर में अपने डिस्ट्रिक्ट में जब आप जोमेटो पे ऑर्डर कर सकते हो तो एक डॉक्टर को, सही डॉक्टर को ढूंढना कौन सा मुश्किल है. सिर्फ इसके लिए एक सोच चाहिए, वो सोच आपके माध्यम से पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है. लेकिन यहाँ बात हो रही है सर, यहाँ की जो बात हो रही है सिर्फ झोला छाप डॉक्टर्स की हो रही है, लेकिन उन बड़ी कंपनी को ब्रांड सब या तो लाखों रुपए दे करके सेलिब्रिटी. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. तो क्या होता है अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब देना होता है तो वो ऑब्वियसली अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से रेम्युनरेशन मांगेगा. So there is a trend. I am not talking about all corporate hospitals, but there are some who are employing these Jola Chop doctors, like who are not qualified to do these aesthetic procedures because they come at a lesser cost. So that is there. But by and large, big corporate hospitals will not do it because their reputation is at stake. But there are some corporate hospitals which are doing this because of that. And to answer his question, our top regulatory authority is
और NMC। तो NMC हमारी मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो अगर हम में से कोई गलती करता है कुछ करते समय, तो मेडिकल नेग्लिजेंस अगर होता है तो NMC देखती है उसको। तो दिस इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी व्हिच लुक्स एट अस, एंड ऑफ कोर्स एट एसोसिएशन लेवल हम लोग देखते हैं कि हमारे मेंबर्स कोई गलतियां ना करे, कोई नॉन एथिकल कुछ ना करे, तो हम लोग भी देखते हैं। I can also answer what she was saying. I think she was asking something a little beyond what she was saying. So what she said is very important. It is related to its beauty industry, जिसे बोलते हैं. So the celebrity culture, and you have, I will not name here, but we all know that there are several celebrities who themselves turn into aesthetic surgeons once they are done, and then they have their relatives are also running. We all know about that. So this is what where the public awareness needs to bring. Just because XYZ is beautiful and they are promoting themselves, you will not become beautiful. And if you need to get it done, get it from a trained person. So because these corporate chains can put in a lot of money, so sometimes the advertisement, and also don't get lured by those advertisements. The message we are giving is that only a dermatologist and a plastic surgeon is authorized in India by the highest body, that is the National Medical Commission. And as I said, they are the only ones who are allowed, and they are monitored by NMC. The rest is just commercial. It is not health, and it's not science. Yeah. Actually, ma'am, I have a question that you are saying that you are talking all these things. But as you have written that the guidelines issued by the Dental Council, it itself says it allows certain anesthetic and hair transplantation procedure. Yeah. So you are saying many people should be patient. Yeah, I will answer But I this. think it's against DCI. I'll answer this question. The original Dental Council Act and the new Dental Act which came in 2023, all of this actually confine the dentist to the oral cavity and the teeth, including the oral maxillofacial surgeons, what they call. This is what you are talking about, those guidelines of the OFMS. Yeah. So, but what has happened is Dental Council has exceeded its jurisdiction. And the Dental Council Act is an act passed by the Parliament. Okay, and that is specifically mentions that the dentists are liable to do whatever procedures are relevant to the teeth and the oral cavity. Even the maxillofacial, it is basically the maxilla, the oral cavity, etc. But what the Dental Council has done is these guidelines which they have written. See, they cannot go beyond the Dental Council Act, which is an act of the Parliament. Okay, so what they have done is they have exceeded their jurisdiction and have issued these guidelines. So that is what we are fighting against. Okay, that is also what we are fighting against, because this is not correct. आप भी समझ सकते हो कि कोई दांत से स्काल तक कैसे पहुंच जाए? So for you were waiting for 3 years. We have been fighting since quite We are- some time. We have been We fighting. We are- since पिछले some time. टर्म में नहीं किया तो कब से नहीं मैम, we are fighting. We are trying to make things correct. आपको एक चीज मैं बताता हूँ. डॉक्टर दीपिका was in the committee which जो अभी दिखाया गया इसमें which is by NMC, जिसमें ये clear cut लिखा गया था कि hair transplant और aesthetic procedures can be done only by dermatologists and plastic surgeons. Unfortunately, दूसरी काउंसिल ने उसको वर्ड टू वर्ड कॉपी किया और कुछ वर्ड्स उसमें से जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन हटा के उसमें मैक्सिलोफेशियल डाल दिया. आपको एक चीज मैं बताता हूँ, आप सब जानते हैं मैक्सिलोफेशियल का मतलब होता है दांत, मैक्सिला और ये इतना सा हिस्सा इसके ऊपर जॉ के ऊपर, इसके ऊपर नाक भी आती है तो कल को वो ENT में भी चले जाएंगे, इसके ऊपर आई भी आती है तो ऑफ्थेल्मी करने लग जाएंगे, और स्कैल्प तो इसमें आता ही नहीं, मैक्सिलोफेशियल में तो आता ही नहीं है. हाउ इट इज मैक्सिलो. और दूसरी बात, ये जो एक्ट है वो पार्लियामेंट द्वारा पास होना चाहिए. आप खुद कॉपी कर पेस्ट करके और एक पब्लिक नोटिस निकाल के नहीं कर सकते. पब्लिक नोटिस निकाल के तो कोई कुछ भी बन सकता है. Have you written to health ministry also? Yes, we have Find represented. a case in fact. In fact, there's a case going on. And Sir- we have also represented. Because dental council body is itself statutory. It is an autonomous body, madam, but the act change in any of the act, whether it is NMC or dental council, it has to be done by the parliament. It cannot be done by
like we five sitting here cannot change. Yes, yes. सिंपल सी बात है ना कि दांत से हम स्काल्प पे या बाकी एस्थेटिक प्रोसीजर कैसे हम पहुंच जाएंगे? मैम दैट इज रॉन्ग। हम उसी को हमने चैलेंज किया है एंड उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग। अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहा कि दांत या मुंह के अंदर बाल नहीं उगते हैं, तो बस It's सिंपल not, and it's not dentists, it's a very OMFS. That is only right. All dentists, even they are not allowing. So we are saying that the deaths that we talked about, she was just a plain BDS. So that is the problem, and it's even beauticians are doing it. So it's all the BHMS, beauticians, it's not just against one another. ये तो वो बात रही कि हमारे सर्जन साथ बैठे कि कल से हम आज से हम आँख भी ट्रीट करेंगे या हार्ट भी ट्रीट करेंगे, और हमने निकाल दिया अपनी तरफ से। बट इट डज नॉट हैज एनी पार्लियामेंट नहीं है ना, हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर हम 10 लोग बैठे और एक आपस में मैं उस समय किया अप्रोच किया लेकिन शायद आप तक अप्रोच नहीं किया, आज आपको आप अप्रोच कर इस चीज पे तो बहुत ज्यादा डिबेट हो चुका है। आई हैव क्वेश्चन कि व्हाई प्लास्टिक सर्जरी इज सो एक्सपेंसिव एंड इट इज नॉट अप टू द मिडिल क्लास और पुअर क्लास। बहुत ज्यादा उनको परेशानी होती है, अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो क्या गवर्नमेंट इस बारे में कुछ कर रही है या हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही है? मैडम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई जस्ट कम टू दैट। लेट मी टेल यू, आई एम अ प्लास्टिक सर्जन, मतलब मैं 28 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और राइट नाउ आई एम एट मेदांता एंड व्हिच वी डू 25% ऑफ वर्क इज फ्रॉम ECHS एंड CGHS। सो ये कहना गलत है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप कोई भी सर्जरी करते हैं, एक बेस प्राइस होता है, but it is as expensive as any roadside clinic. Let me tell you very well. And the other thing is, जो भी ये सर्जरीज होती हैं, जो CGHS, PCHS में covered हैं, they are done on that basis. जो उनकी जो price list होती है, that is at about 30% of the actual hospital charges. So वो भी हम करते हैं। हम लोग कैंसर रिकंस्ट्रक्शन भी बहुत करते हैं। So आप ये कहो कि ये बहुत expensive है, it depends upon the degree of complexity. अगर आप मेरे पास आते हैं, मेरे को कहते हैं कि मेरे को नोज जॉब कराना है, तो एक सर्जन नोज जॉब के लिए 1.5 लाख भी चार्ज कर सकता है और एक एक्सपीरियंस सर्जन 5 लाख भी चार्ज कर सकता है। बट बड़े हॉस्पिटल में क्या है, उसके सेट रेट्स होते हैं। यू कैन नॉट चार्ज बियॉन्ड दैट कि भाई पेशेंट मर्सिडीज में आया तो मैं उससे 10 लाख ले लूं और कोई चल के आया तो उसका मैं 1.5 लाख में कर दूं, बिकॉज ये सर्जरीज 3-3, 4-4 घंटे लेती है। पेशेंट को 24 घंटे 48 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। सो कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ सर्जरी दैट इज रिक्वायर्ड। अब हम बर्न रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, we do complex reconstruction also. Our hospital is permitted to do hand transplant and also we are getting ready to do a face transplant for burn patients. So मेरा कहने का मतलब है these are very complex surgeries. You require a whole subset of team. आपको ICU चाहिए, आपको साथ में पूरा immunosuppression के लिए आपको टीम चाहिए होती है, आपको rheumatologist चाहिए होता है, आपको orthopedic surgeon साथ में चाहिए होता है. So what I mean to say is don't see it from a very narrow vision. कॉस्मेटिक सर्जरी जो सुंदरता के लिए करते हैं, वो प्राइस वेरी करता है आप किससे करवाते हैं। अगर क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराएंगे तो उसका एक बेस प्राइस होगा। यस, अब आप बोलेंगे मैं 25 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को ये सर्जरी करनी है तो मैं इतने प्राइस में करूंगा, और अगर कोई दूसरा सर्जन है वो इतने प्राइस में करेगा। दैट इज वेरी वेरिएबल। सो यू कांट से इट इज एक्सपेंसिव, इट डिपेंड्स अपॉन व्हिच पर्सन यू आर गोइंग टू और क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर भी मैडम इंडिया इसमें दुनिया से सस्ता है, दुनिया में कहीं भी चले जाए 1/10। So this is beside the point of this agenda of this press conference. अच्छा डॉक्टर हाँ जी, ये स्किन का है जी, मतलब ये स्किन जो है डिसीज है या जेनेटिकल प्रॉब्लम? दोनों चीजें इसमें। और अगर ये दोनों प्रॉब्लम है तो इसका वैक्सीन क्यों नहीं बनाते ताकि कम से कम डिसीज तो ना हो? आप उस तरीके जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये तो एक वो बात हुई कि वैक्सीन ऐसा बन जाए जो हर बीमारी के लिए काम आ जाए या हर बीमारी ठीक हो सके। लेकिन आपने जो कहा कि स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट क्या स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं या जो जेनेटिक बीमारियां होती है स्किन से रिलेटेड उनका ट्रीटमेंट करते हैं? जी बिल्कुल, हम दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। और जो आपने कहा कि कोई वैक्सीन बन जाए, तो ये वैक्सीन एक बहुत अच्छा
प्रस्ताव है जो कि हमारे साइंटिस्ट को देना चाहिए जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और जो रिसर्च चल रही है, आपको मैं बताता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि बहुत जल्द बहुत सारी बीमारियों के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन थेरेपी आ सकती है कुछ सालों के बाद, जिससे कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां वो बच्चा पैदा होने से पहले भी पता चल सकती है और उनको वहां भी ठीक किया जा सकता है। बहुत सारी कंट्रीज जो है स्टेम सेल से जो क्रोनिक डिसीजेज हैं उनका इलाज करते हैं, क्या उसके बारे में आपको कोई नॉलेज है? सर बिल्कुल है, और स्टेम सेल से आप इलाज नहीं कर सकते। स्टेम सेल ऐसा सेल होता है जो कि आपका स्किन बना सकता है, कार्टिलेज बना सकता है, बोन बना सकता है, एंड इट कैन आल्सो टर्न इनटू मैलिग्नेंसी, इट कैन बिकम अ कैंसर सेल। तो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हम लोग एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं आप, जिनको कैंसर होता है, उसी तरह से ये जो सेल्स होते हैं, जो टोटिपोटेंट कहते हैं, ये किसी भी रास्ते चल सकते हैं। अगर आप इनको रेगुलेट नहीं करें, आपने किसी और पर्पस के लिए किया, और जरा वो कैंसर में बदल गया। सो स्टेम सेल सुनना कहना आसान लगता है, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है। अभी इम्यूनोथेरेपी आ रही है, मैनी कैंसर्स के लिए इम्यूनोथेरेपी आ रही है। कैंसर सेल्स को स्टडी किया जाता है, उसके अगेंस्ट एंटीजन तैयार किया जाता है। सो यू हैव वैक्सीन्स फॉर कैंसर्स। लाइक जो आप बात कर रहे हैं वो पाइपलाइन में है, काफी जगह काफी रिसर्च हो रही है। I'd like to add to what he's saying. Again, this is another media propaganda, stem cell promotion. It is strictly regulated by ICMR, so Indian Council of Medical Research. So in between there were very strict guidelines about who will allow, because it was being misused by certain people, and any research still requires ICMR permission. That is to prevent the misuse. It should be used in a scientifically ethical and correct manner. Misuse नहीं होना चाहिए। बहुत लोग प्रमोट कर रहे थे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कार्टिलेज, तुम्हारी नी में ठीक कर दूंगा, तुम्हारा मैं ये ठीक कर दूंगा। So all this was felt that this needs to be regulated, so it is not unethically promoted and commercially exploited. मैंने बिहार भी बोला, बाहर के देशों में इसके ऊपर वर्ल्ड ओवर भी इसका रेगुलेशन है। और कोई सवाल आप लोगों का?